Hello students, today we are going to discuss about the relation of potential gradient with electric field intensity. We already discussed the first part of this topic in the video 1. Now we are going to discuss about the part 2. So now we got E equal to minus dV by dr. ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे. So now electric field intensity is negative of potential gradient. That means if you derive potential with respect to distance, you will get negative of electric field. So now we can write dV equal to minus E dot dr, isn't it? Or V equal to how much? If you integrate both sides, you will get E dot dr. Look. So that means if you will derive potential with respect to distance, you will get negative of electric field. If you will integrate electric field, you will get negative of potential difference. Now the case is, here this is the line integration of electric field is the potential, or you can say negative line integration of electric field is potential, or here the negative potential gradient is electric field. Okay, now if you will use this formula for 2 points to find out the potential difference, then I should use VAB. Suppose A and B are 2 points between which we are going to find the potential difference. Now here we have to take the limits. Look, so as far the limits is concerned, we have to place the limit as RA, the position vector of the point A, and the position vector of the point B. Now if we will explain here, VAB equal to, that is minus, look here, if electric field is non-uniform, then you have to do this process. Look, this will be the definition. If electric field is non-uniform. Now if electric field is uniform, we have to keep electric field out of integration, isn't it? So now we can write here, look, now VAB equal to minus E, integration of dr is R, RA to RB. Now we can write R here, that is RB vector minus RA vector, okay, which is nothing but VAB equal to minus E dot AB. What is AB, guys? AB is the displacement vector between A and B. वो भी मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ. तो मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है. तो गाइस ये होगा आपका RA, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. ये हो जाएगा आपका RB, पोजीशन वेक्टर ऑफ B. तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB, यहाँ ये होगा. तो ट्रायंगल लॉ अगर यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ, तो ये आपको मिल जाएगा, दोनों वेक्टर RA और AB सेम ऑर्डर पे है और RB उनका अपोजिट ऑर्डर पे है. तो AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा RB माइनस RA. तो यह हमने RB माइनस RA की जगह AB लिखा. तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस. अगर VAB की बात करें तो ये होगा VB माइनस VA, दैट इज इक्वल टू माइनस A डॉट AB. सारे के सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. अगर पोटेंशियल से फील्ड निकालना हो, ये फॉर्मूला है. अगर dr के जगह x है तो x लिखिए, y है तो y लिखिए. v एज ए फंक्शन ऑफ r होगा तो r, x होगा तो x, y होगा तो y, z होगा तो z. यहाँ अगर यूनिफॉर्म फील्ड वेरिएबल है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दो पॉइंट के बीच a और b, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दो पॉइंट ए बी मान लो, यहाँ अगर ए बी है तो यहाँ ए बी लिखना, या एम एन है होगा तो एम एन लिखना. अगर बी ए हुआ तो बी ए लिखना. तो वी ए बी मतलब क्या है? वी बी माइनस बी ए. ध्यान से देखिए.
तो इसका एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ ताकि आपको यूज करने में आसानी हो। तो बेसिकली बच्चों यहाँ दो टाइप्स के होते हैं क्वेश्चन। पोटेंशियल गिवन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आस्क्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन, पोटेंशियल विल बी आस्क्ड। तो पोटेंशियल देके फील्ड पूछ सकते हैं, फील्ड देके पोटेंशियल पूछ सकते हैं। एक दो इजी क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। सपोज इन द क्वेश्चन पोटेंशियल इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, सपोज 4/x² माइनस 3x प्लस 6, और ये लिख देंगे आपको वेयर x इज इन मीटर। ठीक है, तो अभी हमको ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पे भी पूछ सकते हैं, एक पॉइंट है। तो यह बच्चों पोटेंशियल दिया गया है, फील्ड पूछा है, तो पोटेंशियल यहां एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अभी फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक ही फॉर्मूला होता है, याद करो, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो पोटेंशियल यहाँ फंक्शन ऑफ x है तो हम लिखेंगे dV/dx। अगर वेक्टरल की बात करें तो x है तो इसीलिए हम लोग माइनस dV/dx आई क्या लिखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर dV/dx निकालेंगे जैसे डेरिवेटिव में निकाल रहे थे। तो यहाँ -4 हो गया, x⁻⁻2 है, n इंटू x⁻n-1। अभी x का डेरिवेटिव 1 होगा और 6 का 0 होगा, तो आपका मिल गया dV/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/x³ प्लस 3। फिर जो कोऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट से x का वैल्यू यूज कर लो, तो कोऑर्डिनेट्स में x है 2, तो ये आपको मिल गया 4। तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो माइनस साइन यूज करना, -4 यूनिट के साथ यूनिट वेक्टर भी लिखना डायरेक्शन के लिए। तो ये हो गया आपका हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो यहाँ पोटेंशियल से हम लोग फील्ड निकाले। ठीक है, तो फिर और एक क्वेश्चन बनाते हैं और एक डिफरेंट स्टाइल। इफ V8 look 2 meter minus 3 meter is -4 volt, find potential at any point। ले लो आप -3 मीटर एंड 4 मीटर। इफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है I कैप -5 J कैप न्यूटन पर कूलम। ध्यान से देखिए, यहां ऑलरेडी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है और एक पॉइंट पे पोटेंशियल इज आस्क्ड। ठीक है, तो अब बच्चों यहां दो जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है। तो इसे पता है यहाँ फील्ड गिवन है पोटेंशियल आस्क्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लिखेंगे I कैप -5 J कैप, और जो ए बी है बच्चों, ए बी के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, x2 - x1 I कैप, y2 - y1 J कैप होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, 1 पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट है। तो x2 - x1 I कैप मतलब -5 I कैप, y2 - y1 J कैप मतलब +7 J कैप। अभी पोटेंशियल एट B इज आस्क्ड, A पे पोटेंशियल -4 है, तो अभी VB +4, तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, ये 1 है या -5 है, याद है ना, 1 ये -5, ये -5 + 7 -35, ये -40, ये +40, तो VB हो गया बच्चों 40 - 4 दैट इज 36 वोल्ट। एक पॉइंट पे दिया जाएगा, एक पॉइंट पे पूछेंगे, तो एक पॉइंट को ए ले लो और एक पॉइंट को बी ले लो, आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू गाइस।